السلام علیکم، میرا نام ہے نظام الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام ریئیکشن۔ محمد سب کے لیے پارٹ 1۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ یہ ویڈیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز کا، جس کا نام محمد سب کے لیے، اس کا پہلا حصہ ہوگا، پارٹ 1 ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سننا سمجھنا شروع کرے، اس سے پہلے تھوڑا شارٹ کٹ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین کا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ شہر کہاں آباد ہوا، کیسے آباد ہوا، کس نے آباد کیا، اور ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کیسے شروع ہوئی اور کس نے کی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے دماغوں میں بہتر طریقے سے بیٹھ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ یعنی مکہ شہر آج سے تقریباً 4000 سال سے بھی زیادہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور رہتا تھا۔ بالکل کالے پتھروں سے بھرا ہوا یہ علاقہ اور چٹیل میدان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی ہریالی کا نشان تھا، مگر خدا کو اس سرزمین کو دنیا میں بڑھانا تھا، اس لیے اس زمین کو آباد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ اس نے اپنے دوست، اپنے خلیل، اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس زمین میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اپنے بیوی بچوں کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا دیا۔ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران جگہ پر اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر حیران اور پریشان پھر رہی تھی۔ ان کی گود میں معصوم بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جس جگہ آج کعبہ ہے، اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح خدا نے اس سوکھے اور بنجر علاقے میں پانی کا انتظام کر دیا، اور حضرت حاجرہ اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں صبر اور سکون کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ پھر کیا تھا، یہاں پانی کو دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے۔ ہر وقت پرندوں کے جھنڈ وہاں پر اڑنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ قافلہ ایک قبیلے کا تھا۔ وہ قبیلے کا نام بنی جرہم تھا، جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس نے پرندوں کے جھنڈ کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پر پانی موجود ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ حالانکہ یہ واقعات بہت لمبے ہیں، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا مقصد ہے، اس لیے میں یہ سب واقعات پر شارٹ کٹ میں اور مختصر انداز میں بول کر گزر رہا ہوں۔ اس قبیلے والوں نے یہاں آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت اپنے معصوم بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ کے پاس آ کر ان سے یہاں رہنے کی اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی، انہوں نے قافلے والوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح حضرت حاجرہ کے بعد پہلی آبادی
कबीले जुरहुम की वहां पर आबाद हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आकर वहां पर बसने लगे और देखते देखते ये जमीन का टुकड़ा जिसको तिहामा कहते थे एक छोटी सी बस्ती बन गई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहां रहते हुए पूरे 15 साल बीत गए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पूरे 15 साल के हो गए और एक दिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जिसको तिहामा कहते थे वहां पर काबे को तैयार करें जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई, मिले, तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहां लोग खुदा की इबादत करें और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहां पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा रसूल थे। तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी, यहां तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत अहमियत थी और बैतुल्लाह के इंतजामात करने वाले यानी ट्रस्टियान जो काबा थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी, यहां तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी, तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजरे अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहां तक के बात यहां तक बढ़ गई और बिगड़ गई कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे और ये इज्जत इतनी बढ़ गई एक वक्त में कि अरब वाले उन्हीं पत्थरों को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इबादत करने लग गए और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की यानी बुतों को पूजना उसकी शुरुआत हो गई और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए। मगर मक्का में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जिस शख्स ने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की और बुत परस्ती को फैलाया
वो उसका नाम था अम्र बिन लुही। वो अपने जमाने में मक्का का सरदार था। हुआ ये कि वो एक दफा अपना इलाज कराने के लिए मुल्क शाम गया, जहां उसने लोगों को पत्थरों को और तस्वीरों को पूछते हुए देखा। तो उसे वो तरीका बहुत पसंद आया और वो वहां से एक बुत लेकर मक्का में आ गया और उसे बैतुल्ला में यानी काबा में रखवाया। इस तरह पहला बुत काबा में रखा गया जिसका नाम हुबुल था। फिर अम्र एक दिन जद्दा गया, वहां से भी वो कुछ बुत उठाकर ले आया और लोगों से कहने लगा कि इनकी इबादत करो। लोग चूंकि हर साल मक्का में हज को आते थे तो बहुत जल्दी उन बुतों की शोहरत हो गई और लोग उनसे मिन्नतें मांगने लग गए। अरब में चूंकि सैकड़ों कबीले थे, सब ने अपने अलग अलग बुत बना लिए। जो कबीला जितना बड़ा और मशहूर था, उनके बुत उतने ही बड़े और उतने ही मशहूर हो गए। मक्का में सबसे बड़ा और मशहूर कबीला कुरैश का था, उनके बुत का नाम हुबुल और उज़्ज़ा था। और दूसरा जो मशहूर कबीला था वो ताइफ का था, जिसका नाम सकीफ था, कबीले सकीफ, और उनके बुत का नाम लात था। उसके अलावा और भी बहुत सारे बुत थे जिनके नाम आसाफ, नाइला वगैरह ऐसे कुछ थे। इस तरह खुदा का घर बुतों का अड्डा बन गया। इसी तरह बुत परस्ती करते हुए सदियां गुजर गई, लोगों के जहन बदल गए। अब वो खुल्लम खुल्ला बुतों को पूजने लग गए, मगर फिर भी इतनी बुत परस्ती के बावजूद बैतुल्ला की इज्जत, काबे की इज्जत उन लोगों के दिलों में थी, जैसा कि उनके बाप दादाओं के दिलों में थी और उनके जमाने में थी। लोग ऐसे वक्त में भी अपने घरों को काबे से ऊंचा नहीं बनाते थे, उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब हम दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि जमजम का कुआं कहां चला गया, उसको किसने बंद कर दिया, कब बंद कर दिया। अब तो लोग भूल भी गए थे कि यहां पर कोई कुआं भी था, वो कैसे मिला, किसने बताया। फिर हाथियों वाला किस्सा, जो अबाबिल वाला किस्सा था, जो कुरान पाक में भी मौजूद है। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी निशानियां दुनिया को बताई थी, ये हम दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके ये सीरीज मोहम्मद सब के लिए शुरू कर दी है। हमने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है, आप भी अपने वादे को पूरा करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को आप जरूर शेयर करें। अगर आप ज्यादा शेयर करते हैं और ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती है तो ये बात आपके लिए बाइसे सवाब होगी और सदक़े जारिया होगा। तब तक के लिए मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग को कौन सी वीडियो अच्छा लगता है, उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे। आप लोग को कमेंट में राय और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए।